Yes, sir. Not Shivangi, Shivani, Contact me Shivani of Parikh. This is not. contact me was also. No, leave it. I mean, if she joins, I'll let you know. Okay, no problem. Okay, we can start. Yeah, okay. Once again, good morning and welcome all the participants. Today we have a very special session that is related to Khelo India assessment, monitoring and registration. So we are going to have the whole structure of Khelo India, and then now participants. So as I told, we have a very special session and a very eminent and experienced speaker as well with us. So let me take this opportunity to welcome our all the speakers in the session. So dear participants, on behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Khelo India, and on behalf of Principal Dr. G. Kishore, Sai LNCP Trivandrum, and on behalf of entire team of organizing physical education teachers and community coaching program, I, Dr. Narendra Gangwar, would like to take this opportunity to welcome our first speaker, Mr. Sujit Panigiri, CEO Fitness 365, joint coordinator of this program. Now, let me introduce Sir. Sir is the CEO of Fitness 365, which runs structured PE and sports coaching program in more than 1,500 schools across the country. Fitness 365 is managing the Khelo India Fitness Assessment Program for Sports Authority of India, Swachh Bacche Swachh Bharat program for KBS, and is also part of Fit India program. Sir is also part of CBSE and NCERT curriculum committee. Sir, we are really great and honored to have you in the session. Sir, Thank you welcome. so much. Thank you so much. Yeah. Now, I would like to extend my hearty welcome to Madam Neeraj Singh, Head of the Department, JP Public School, Greater Noida. Madam, we welcome you, and it's a privilege for us to have you in the session. Thank you, sir. Now, thank you so much. let me introduce the Madam CBSE Sports Observer since 2006, national level player of table tennis and taekwondo, and master trainer Khelo India Fitness Assessment. So, Madam, we are sure that we are definitely going to get all the practical information and experience knowledge from you. Ma'am, we welcome you. Now, we have another eminent speaker with us, Mr. Himanshu Jaiswal, primary teacher, Kendriya Vidyalaya number 1, Chhindwara, MP. Sir, we welcome you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Now, sir is regional level master trainer for SV KBS Jabalpur region, national level mountaineer and captain of KBS Jabalpur region staff cricket team. Experience of 15 years in high altitude trekking and monitoring with various sports. So, sir is still, active and is a captain. So, it's a big example of leadership. Sir, we welcome you in our program. Thank you, sir. Thank you. And then now, let me welcome our another speaker, Ms. Shivangi Parikh, PRT, SB Public School, Jaipur. Madam, She's not here now. Yeah. So Maybe she's not next with us. session. She may be joined. So Next I would like session. to just extend my welcome. Yeah. She's a national level master trainer for Sai and CBSE Khelo India Fitness Assessment Program. So, and let me welcome all the lovely participants. Because of them only this all entire program is running. So we really love to welcome each and everyone in the session.
Now, without taking much time, I would like to over to Mr. Sujit Panigrahi, sir. Sir, please. Yeah. Good morning, all the participants. Just a second. Good morning. Thank you so much, Gangwar sir. It's actually nice to be talking to all the participants. So with me, I have Neeraj and Himanshu ji, both of them, very experienced master trainers of successful master trainers of both Khelo India and Swasth Bachche Swasth Bharat. So without taking much time, so let me just take you through the entire programs. We'll have a session on how to do registration of schools today. So it's a 2-day program, today and tomorrow. So don't miss out tomorrow also. So today we are going to talk about registration of schools, registration of assessors, and how to start the assessment. So we'll talk about it. Tomorrow we'll look at another segment. Let me just take you through some examples. Let's take an example of Hima Das. She is from a very small town in Assam, Ding. She's a daughter. She's one of the 5 daughters of a farmer. एक farmer की daughter है. And लेकिन जो उनके physical education teacher है, वो पहले जब छोटी सी बच्ची थी तो उस समय वो फुटबॉल खेलती थी till about 9 and 10. तो उनका जो पी टीचर ने उन्होंने देखा वो बॉयज के साथ ही खेलती थी फुटबॉल. पी टीचर ने देखा कि that she is actually very good in sprinting. तो physical education teacher ने उनका advice किया कि you start doing the sprinting. And from then on, she is now the most successful runner in this country. तो उन्होंने 18 साल की उम्र में Asian Games medalist she became. So basically it shows that अगर physical education teacher का जो role है, बहुत important role है in identification of talent. बच्चों में जो हुनर है उसको identify करना. ये नहीं कि physical education teacher हर teacher का duty है. अगर कोई maths में अच्छा है तो maths teacher का ये है, कोई science में अच्छा है तो science का teacher का है. बट क्योंकि हम स्पोर्ट्स और फिटनेस की बात कर रहे हैं तो फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात कर रहे हैं कि अर्ली टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्पोर्ट्स का एक इंपॉर्टेंस है. लेट्स टेक द सेकंड एग्जांपल. कर्णम मल्लेश्वरी, वो born in a small town called Busawanipeeta. तो मैंने पहले सुना नहीं था इस जगह के बारे में. लाइक मेनी ऑफ अस, हमने सुना ही नहीं होगा. वो भी 5 डॉटर्स थे, उनमें से एक डॉटर थी. तो वो शी स्टार्टेड व्हेन शी वाज 12. तो उन्होंने कोच है एन अपन्ना, उनके अंडर ट्रेनिंग किए. और वो 1990 में तो जब वो 15 साल की थी कि साई ने उनको स्पॉट किया, उनके टैलेंट को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, और उनको नेशनल कैंपर में उनको ज्वाइन कराया. एंड शी बिकम ए वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एट द एज ऑफ 18. 18 साल में वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज जीती. उसके बाद से अगर आप देखा जाए टिल इनटू एज ऑफ 2000 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मिला था उनको सिडनी ओलंपिक्स में. एंड 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2 एशियन गेम्स के मेडल ये मिले. तो उसका मतलब ये सेकेंड एग्जांपल है. थर्ड एग्जांपल है दूती चंद. दूती चंद जो है जाजपुर करके एक जगह है उड़ीसा में. वो उनके पेरेंट्स जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के पेरेंट्स है. उन्होंने अगेन छोटी सी एज में उनको किसी ने स्पॉट किया, उनके टीचर ने स्पॉट किया. तो फिर वो 16 साल की एज में 16 इयर्स में तो कुछ भी नहीं होता. 16 इयर्स की एज में वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बनी एशियन चैंपियनशिप में और उनको 2 मेडल्स मिले एशियन गेम्स में. सिमिलरली हम एग्जांपल ले लेते हैं सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के एग्जांपल है. दोनों इक्वली कॉम्पिटेंट. लेकिन सचिन तेंदुलकर 16 साल में खेलना स्टार्ट किया इंडिया में और राहुल द्रविड़ 22-23 साल में. सचिन तेंदुलकर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी, अगर वो 16 साल के बदले 6 साल के बाद वो खेलते हैं या 8 साल के बाद खेलते हैं, शायद इतना रन्स नहीं बना पाते. तो इसका मतलब ये, और उनका जो कोच है कोच आर्चेकर जी हैं, तो उन्होंने उनको स्पॉट किया उनके टैलेंट को, फिर उनको ग्रूम किए. ऑफ कोर्स उनके ब्रदर ने भी किया था. उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट करते हैं और उसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिकल एजुकेशन टीचर का और जो उनकी कोच का, जो भी उनके स्पोर्ट्स कोच है. So if you identify talent at 8, you can become a champion at 18. तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि खाली स्पोर्ट्स का टैलेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए. जो मिडिल स्कूल है बहुत इंपॉर्टेंट फेज है किसी भी बच्चे के लिए. जो क्लास 4 to 8 के जो बच्चे होते हैं, जो भी टीचर्स हैं, मैथ्स के टीचर हो, साइंस के टीचर हो, सोशल साइंस के टीचर हो, जो इंग्लिश और लैंग्वेज के टीचर हो, स्पोर्ट्स के टीचर हो, कोई भी सब्जेक्ट टीचर हो, फिजिकल एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट. जो भी सब्जेक्ट टीचर हो, जिसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट को अगर वो आगे ले जाते हैं
So then that is beautiful, right? So you say that identify talent at 8, become a champion by 18. Champion in life. So champion किसी भी चीज में हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है या किसी भी फील्ड में हो सकता है. इसमें जो द रोल ऑफ द्रोणाचार्य इज सो इम्पोर्टेंट. आप सारे लोग द्रोणाचार्य की तरह हैं, आप सारे द्रोणाचार्य हैं. सो हमें अगर अर्जुनास को फाइंड करना है तो हमें द्रोणाचार्य का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द रोल ऑफ कोच एंड स्टूडेंट is very important. कोच और पी टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक द डिफरेंस ऑफ अर्ली टैलेंट आइडेंटिफिकेशन. ये है सबसे पहले जब हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया था 2 जून को, ये डायग्राम आपको इंट्रोड्यूस किया हुआ था कि जो इंडिया किस तरीके से सोच रहा है. अभी इंडिया ये सोच रहे हैं कि अगर इससे पहले टिल 2018 से पहले 2018 से पहले हमारा स्कूल सिस्टम के साथ स्पोर्ट्स की सिस्टम कनेक्टेड ही नहीं था. स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री अलग काम करती थी और एमएचआरडी की मिनिस्ट्री अलग तरीके से काम करती थी. 2018 ऑनवर्ड्स, अब मैं ये खेलो इंडिया जो नेशनल फिटनेस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, ये पहली बार ये जुड़ गया. स्पोर्ट्स और एमएचआरडी मिनिस्ट्री एक साथ काम कर रहे हैं. सीबीएसई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिफरेंट स्पोर्ट्स बोर्ड्स, आईसीएसई, धीरे धीरे करके अब सारे लोग जुड़ रहे हैं इस पूरे मुहिम में. सो नाउ स्पोर्ट्स स्कूल्स को हमने स्पोर्ट्स सिस्टम के साथ जोड़ दिया. हमारे पास 15 मिलियन स्कूल, 15 लाख स्कूल से इंडिया में, एंड वी हैव मोर देन 30 करोड़ चिल्ड्रन, 30 करोड़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड 8 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. सो रफली अराउंड 33 करोड़ बच्चों के पास हमारे वी हैव वेज ऑफ कनेक्टिंग. अगर हर स्कूल खेलने लग जाए बच्चे को, हमने जून 2 से हमने देखा कि फिजिकल एजुकेशन करिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, 60 मिनट्स प्ले के बारे में बात किया, नर्सरी टू 5th, फिर हमने 6 to 8 और 9 to 12 के करिकुलम की बात किया, और उसको प्ले सेशंस की बात किया, हमने कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम की बात किया. जब हम सारी चीज की हमने बात किया, इसका मतलब है अगर हम 60 मिनट्स ऑफ प्ले हर स्कूल में इंश्योर कर लेते हैं, एक पीरियड पर डे करते हैं, उससे फ्री प्ले दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे बच्चे खेलेंगे. हम जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश में इंडिया अच्छा कर रहा है क्योंकि हर बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, हर बच्चा साइंस पढ़ रहा है, हर बच्चा इंग्लिश, हिंदी या जो भी लोकल लैंग्वेज है, सोशल साइंसेस. तो हमारा द प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और बाकी प्रोफेशन के बहुत अच्छे हैं और सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं. हम इंडिया अभी आईटी के प्रोफेशनल्स को एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर. सिमिलर चीज आप वो वी विल बी सक्सेसफुल अगर हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और स्पोर्ट्स कोचेस को एक्सपोर्ट कर पाए बाकी कंट्रीज को. नर्सेस भी बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो हमारे पी टीचर्स और स्पोर्ट्स कोचेस भी एक्सपोर्ट हो पाए इफ वी हैव क्वालिटी. तो हम 2 लेवल पे काम कर रहे हैं, अपग्रेडिंग ऑफ पी टीचर एंड कम्युनिटी स्पोर्ट्स कोचेस में. One is what Sai LNCP is doing, which is basically about giving everyone a structure कि हम स्कूलों में पी प्रोग्राम और कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम कैसे रन करें. तो ये हो गया. लेकिन क्या होता है, हर सब्जेक्ट में पढ़ाते भी है, हर सब्जेक्ट में असेसमेंट भी होता है. मैथमेटिक्स में टर्म 1 एंड टर्म 2 के रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं आपको. सो सिमिलरली हम कह रहे हैं कि फिजिकल फिटनेस रिपोर्ट कार्ड को क्लास टीचर जब रिपोर्ट कार्ड बच्चों को देता है, तो एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ फिटनेस की रिपोर्ट कार्ड हर पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, ताकि उनको पता रहे कि बच्चा कितना बैलेंस है, एजुकेशन में कैसे बैलेंस है एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स के बीच में. तो ये इंपॉर्टेंट है. जब हमारा नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ बच्चे खेलने लग जाए, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए किसी भी स्कूल में. अगर हम ये 30 करोड़ बच्चे अगर हम खेल पाते हैं, तो हमारा जो ऊपर का ट्राइंगल है, पोडियम फिनिश इसको बोलते हैं, हाईएस्ट लेवल पे, ये अपने आप ही हो जाएगा. हमें उसके लिए फोकस नहीं करना है. हमें फोकस करना है कि हर बच्चा खेले, स्ट्रक्चर्ड प्ले करे, फ्री प्ले करे, रिसेस टाइम में खेले, आफ्टर स्कूल में खेले. तो हमें 60 मिनट्स को इंश्योर करना है, 60 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्टिविटीज, और फिर हम मतलब हफ्ते में 3 दिन हमको बोन स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज, 3 दिन मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज कराएं, और किसी भी तरह का फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटी करें जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, एंड्योरेंस बढ़े. तो ये सारी चीजों में अगर फोकस करें और फन प्लेस करें, तो अपने आप ही हमारा हमें उसमें टैलेंट के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आ जाएगा उसमें अगर हम. लेकिन क्या है कि एवरी चाइल्ड शुड हैव फन. बच्चों को खेलना बड़ा पसंद है, तो वो कर पाए वो. तो इसमें ऑटोमेटिकली फिर बच्चे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और पोडियम फिनिश हो सकता है. सो ये हमारा पर्पस है. एक तो पी टीचर एंड कम्युनिटी कोचेस को हम स्ट्रक्चर किस तरीके से पढ़ाना है वो सिखा रहे हैं, फिजिकल लिटरेसी के बारे में सिखा रहे हैं हर चीज में. दूसरा हम असेसमेंट के बारे में सिखा रहे हैं. तो हमारा आज और कल और मंडे का जो सेशन है, इट इज ऑल अबाउट असेसमेंट. तो ये है. तो बेसिकली क्योंकि 30 करोड़ बच्चे हैं स्कूलों में और आप सारे स्कूल के हैं, आप सारे द्रोणाचार्य हैं, ये अपॉर्चुनिटी हम सबके सामने है फॉर ऑल द स्कूल प्रिंसिपल्स,
HMs and the principal PE teachers to transform India. And we need to find out the next champions. हमारा जो PV सिंधुज है, कर्नल राठौर है, बाईचुंग भूटिया है, सुनील छेत्री है, कोई भी ये है, मनु बाकर है, तो हमें अगर टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, इंडिया के कहीं पे भी हो सकते हैं, छोटे से छोटे गांव में भी हो सकते हैं और बड़े शहर में भी हो सकते हैं। तो हमारा, हम जो भी प्रोग्राम करें, हमारे टैलेंट को अगर ढूंढना है, हमें वहां से ढूंढ पाए। तो ये खाली फिजिकल, फिर से इंसिस्ट करता है, पी का होना जरूरी नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में भी हो सकते हैं, बट पी फिजिकल एजुकेशन टीचर का रोल है ये। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 2019 में, फरवरी 2019 में पीएम लॉन्च द खेलो इंडिया ऐप ऑन फरवरी 2019। सो वी विल लेट अस थिंक अबाउट कीपिंग दिस इन माइंड। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, लेट अस सी व्हाट द प्रोग्राम इज अबाउट। यहाँ ढूंढो बाहर ढूंढो, घर में भी या बाहर ढूंढो, खेलते हो कि नहीं हो, अरे इंडिया के नए चैंपियन ढूंढो। फुटबॉल में, कबड्डी में, निक्कर में या चड्डी में, हॉकी में या टीटी में, रेस में या पीटी में, मम्मी भी और पापा भी, टीचर भी और मामा भी, अंकल आंटी बच्चा पार्टी ढूंढेंगे अब चैंपियंस भी। इसे खेले कहाँ खेले, चाहे गुरु हो या चले, कितने फिट हो यहाँ देखो, रूल सारे यहाँ सीखो। कितना तेज दौड़े देखो, कितना दूर कूद देखो, खेलते होंगे कहीं वो, अरे चलो गिले चैंपियन ढूंढो। खेले भी हिले भी। खेलो इंडिया ऐप के साथ आप भी ढूंढ सकते हैं अगले चैंपियंस। तो कोई फोन न रह जाए जिसमें ये ऐप ना हो, ताकि कोई चैंपियंस ना रह जाए जो डिस्कवर ना हो। अरे चलो गिले चैंपियन ढूंढो। खेलो इंडिया ऐप, चलो चैंपियंस ढूंढे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पीएम का एक विजन है कि हम जो है, हम हर स्कूलों को ऐसे बना दे दैट वी एक्चुअली इंश्योर 60 मिनट्स ऑफ प्ले। सीबीएसई ने गाइडलाइन निकाला कि हर स्कूल में एक एक पीरियड होना चाहिए और 60 मिनट्स होना चाहिए। तो बाकी बोर्ड्स भी धीरे धीरे उस चीज को कर रहे हैं। ICSE इज क्वाइट अहेड, बहुत सारे बोर्ड्स ने फोकस कर रहे हैं। तो हम इसके थ्रू हम बच्चों को खिलाएं और उनमें से हम अपने आप चैंपियंस ढूंढे। तो खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस प्रोग्राम का 2 पार्ट्स है। एक हो गया कि हर बच्चे को, कोई एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए जिसको फिजिकल फिटनेस रिपोर्ट कार्ड ना मिले। बाकी सब्जेक्ट का जैसे रिपोर्ट कार्ड मिलता है वैसे ही फिजिकल फिटनेस की रिपोर्ट कार्ड मिले। मैथमेटिक्स का अगर मिल रहा है तो क्यों नहीं फिटनेस का मिले। और हो सकता है फिटनेस में भी हम देखें, किसी भी रिपोर्ट कार्ड को देखें तो किसी का अगर हम स्ट्रेंथ और वीकनेस देखें, कुछ बच्चों का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा होता है, किसी का बैलेंस अच्छा होता है। हमें उस चीज में हमें स्ट्रेंथ को ढूंढना है कि कौन सी बच्चे का क्या स्ट्रेंथ है, हम उसके हिसाब से देखें। वीकनेसेस तो हर किसी का होता है, बट हम स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करें। तो फिजिकल फिटनेस असेसमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन, तो हर बच्चा खेले, हर बच्चा एंजॉय करे और साल में 2 बार जैसे टर्म 1 एंड टर्म 2 है, उनको अपना अपना रिपोर्ट कार्ड मिले। पेरेंट्स भी खुश होंगे देखने के लिए। दूसरा है कि जो बच्चे, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी का काम है कि ऑल ओवर इंडिया से जो डेटा आएगा उनमें से जो टैलेंट है, टैलेंटेड बच्चे हैं, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी अपने आप ही उसमें से ढूंढ सकता है उस डेटा के बेसिस पे। तो दो पार्ट्स है। एक है फिटनेस फॉर ऑल चिल्ड्रन, ऑल मतलब 100% चिल्ड्रन, और स्पोर्ट्स स्किल्स असेसमेंट है जो बच्चे टैलेंटेड है। और जैसे मेरे साथ हिमांशु जायसवाल जी हैं, उन्होंने जबलपुर रीजन जो है केंद्रीय विद्यालय का है, ऑलमोस्ट 55,000 बच्चों का, हर बच्चे का 100% बच्चों का हर ईच एंड एवरी टेस्ट को उन्होंने कराया। 3 साल से करा रहे हैं एंड 100% मतलब एवरी चाइल्ड एवरी टेस्ट डन मेटिकुलसली डन। और उन्होंने वो क्या है कि वो एक्चुअली है प्राइमरी के टीचर, he is not even a physical education teacher, but the fact is that he has taken interest in physical fitness and that is why he is here। because important है कि आपको ये काफी जो नोशन होता है कि ओनली पी टीचर उसको कर सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे एप्लीकेशन इतना सिंपल है। अगर आप स्कूल में ट्रेनिंग कराएंगे तो आपको कोई भी टीचर आपको करा सकते हैं एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। ये जो है ये 5 to 18 ईयर्स के लिए खेलो इंडिया ने बैटरी ऑफ टेस्ट बनाया है। 5 to 8 ईयर्स के लिए 3 टेस्ट है, BMI, स्टैटिक बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ये 3 टेस्ट है। 5 to 8 का मतलब है क्लास 1, 2 और 3। जितना भी पी टीचर्स है, कोचेस हैं, तो आपको ये कहता हूँ कि क्लास 1, 2 और 3 बच्चों के लिए 3 टेस्ट है। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है कि क्लास 1, 2 और 3 में हमने जैसे नर्सरी टू 5th के करिकुलम हमने देखा था, जो मैंने लिया हुआ था, उसमें आप देखेंगे कि हमने उस समय बोला था कि जो छोटे बच्चे होते हैं आप उनको फंडामेंटल मूवमेंट स्किल सिखा रहे हो, रनिंग, जंपिंग, हॉपिंग, स्किपिंग, किकिंग, कैचिंग, थ्रोइंग, ये बहुत बेसिक स्किल सिखा रहे हैं।
जिसमें उनका जो डेवलपमेंट्स होता है वो बेसिक स्किल्स की हो रही है, और साथ में उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, और उसमें हम जो देख रहे हैं, हम बेसिक चीज देख रहे हैं, बच्चे का बैलेंस ठीक है कि नहीं है, और उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन ठीक है कि नहीं है, हम उस चीज को खाली देख रहे हैं, इसलिए ये 3 टेस्ट है। 5 to 18 प्लस 9 to 18 प्लस का मतलब क्लास 4 से लेकर 12th क्लास तक है। 4th to 12th के लिए देयर आर बैटरी ऑफ 6 टेस्ट व्हिच आर देयर। बॉडी मास इंडेक्स, स्पीड, 50 मीटर का डैश है, एंड्योरेंस देख रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस देखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे हर बच्चे का, उसका कोर स्ट्रेंथ देखेंगे, और मस्कुलर एंड्योरेंस देख रहे हैं। तो ये है 6 टेस्ट है। ये जनरल फिटनेस टेस्ट है हर बच्चे के लिए, मतलब एवरी सिंगल चाइल्ड इन द स्कूल should be undergoing this test, and that is what it matters. Yeah. Just 1 second. Hello. नहीं आ रही है? अच्छा, किसी ने बताया नहीं? अच्छा, 1 सेकंड। Hello. Hello, can you hear me? Sujit sir, Yes, sir. your आवाज is clear. Actually, your आवाज is clear, and then few messages are coming. It's coming, no? So they have network problem that side. I think your voice is clear. हाँ, यहाँ हमें तो आ रही है सर। हाँ, अच्छा, okay. So you can continue, sir. Okay. I'll just drop message to them. Okay, yeah. Because okay, I've been taking sessions, so कोई problem ही नहीं आया, ठीक है, okay. So here, so I was telling you about this. There are totally 3 tests for 5 to 8 and 9 to 18 के लिए 6 टेस्ट है। तो इसमें जो खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट एप्लीकेशन में 4 पार्ट्स है। एक हो गया असेसर इंटरफेस, मतलब जो पी टीचर है या जो भी असेसमेंट कर रहा है स्कूल में, पी टीचर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स कोच हो सकते हैं, या पीआरटीज भी हो सकते हैं। बहुत सारे स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी टीचर्स कराते हैं, तो कोई भी फिजिकल असेसमेंट करा सकते हैं। सेकेंड हो गया कि स्कूल इंटरफेस, मतलब जो प्रिंसिपल या एचएम के लिए इंटरफेस है, जिसमें हर बच्चे का एक आईडी कार्ड जनरेट करना है। तो बच्चों को डेटा अपलोड करेंगे तो आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा, फिर वो जो पी टीचर्स है उनको जोड़ना है। थर्ड हो गया कि रिपोर्ट कार्ड को प्रिंट करना है, और चौथा है जब भी असेसमेंट हो जाएगा तो स्कूल उस असेसमेंट को देख सकते हैं। तीसरा वाला पार्ट हो गया पेरेंट इंटरफेस। पेरेंट इंटरफेस इज बेसिकली क्योंकि हर पेरेंट इंटरेस्टेड है कि उस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड मिल जाए उसमें। तो हमने खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट सिस्टम इज एडवांस्ड एंड इट इज सिंपल। सो हर पेरेंट जो है अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देख सकता है, और बच्चे का जो प्रोग्रेस है, मान लो बच्चे 5 साल या 6 साल में, उसका फिटनेस में जो इम्प्रूवमेंट है हर 6 महीने में, या तो घर में भी फिटनेस असेसमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम कल बताएंगे कि पेरेंट्स को कैसे देख सकते हैं। And Sports Authority of India can track the performance of schools, children. So if you want to find out which is the fittest school or fittest बच्चा, तो मैं हम देख सकते हैं। इस प्रोग्राम का 3 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 है फिटनेस असेसमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन, 100% चिल्ड्रन, हर बच्चों का, एंड उसमें से 1% बच्चे का। अभी हमने 22 लाख असेसमेंट कर चुके हैं लास्ट ईयर। 22 लाख असेसमेंट में अगर हम 1% भी लेते हैं तो 22,000 बच्चे हैं। 22,000 बच्चों का जब हम उनको स्कूल को भेज देते हैं वापस रीटेस्ट करने के लिए, उसमें से जो भी परसेंटेज बच्चे आते हैं, उसमें 5,000 बच्चों का अगर स्टेज 3 में करते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन साई सेंटर्स में, तो हमारे पास पूल ऑफ टैलेंट हम निकलेंगे। तो एक तो हो गया हर बच्चे का फिटनेस इंप्रूव हो रहा है, और उसमें से हम टैलेंट भी निकाल रहे हैं। तो दोनों बातें। असेसर ऐप जो है वो है कि हर सो बेसिकली क्या है कि पी टीचर्स जो है उनके पास एक सिंपल ऐप है। हम जैसे अब सेशन में बैठे हुए हैं, आप प्लीज इसको डाउनलोड कर लीजिए। खेलो इंडिया ब्रैकेट में स्कूल वर्जन है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, और ये व्हाइट कलर का आइकन दिखेगा आपको। 2 आइकन, एक व्हाइट और व्हाइट एंड येलो है। तो ये व्हाइट सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, आप इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप का इंटरेस्टिंग है कि ये ऑनलाइन मोड में चलता है, ऑफलाइन मोड में चलता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। इसके लिए आप छोटे से छोटे गांव में भी चला सकते हैं, बिना इंटरनेट का आप इसको असेसमेंट कर सकते हैं। ये ऐप जो है इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है, जिसके अंदर ये फॉक्स 40 की विसल से इसका टाइमर अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो आपको टाइमर को दबाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप 600 मीटर का कर रहे हैं या 100 मीटर का रेस कर रहे हैं, सो जो स्कोरर है इस मोबाइल फोन को लेके लास्ट लाइन में खड़े हो जाए, और बिगनिंग लाइन में जब
एक्सपर्टी का विसिल चलता है तो एप्लीकेशन अपने आप उसका टाइमर को स्टार्ट कर देता है। तो टाइमर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्टॉप वॉच चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और इसके अंदर एक QR कोडेड कार्ड है। तो QR कोडेड कार्ड जो है हर बच्चे के पास है जो 12 साल के, पैन कार्ड और आधार कार्ड का है, तो इसका कोई एक्सपायरी नहीं है इस कार्ड का। तो जब भी आप असेसमेंट करेंगे इस कार्ड के ऊपर जब स्कैन करेंगे तो अपने आप उसका रिजल्ट आ जाएगा उसमें। तो ये है असेसर का। अभी हम नेक्स्ट सेशन करेंगे। नेक्स्ट सेशन में जो है नीरज इज गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड। शी इज गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि हम स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, पी टीचर्स कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, बच्चों का डेटा कैसे अपलोड होगा और आईडी कार्ड का जनरेशन कैसे होगा। नीरज, यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड? I'm sharing. Yeah, sir. Yeah. जी sir. Yeah, you can share your screen. This will go off. आप इसी स्क्रीन से शेयर कीजिए. You open that from this screen. Okay, sir. My screen is visible. Yeah, please Am I continue. audible? Yeah. Yes, please continue. Good morning, everyone. As sir have told you, what is the Khelo India Fitness Assessment Program? Now we'll take up to the technicalities. आपको ये करना कैसे? How you will go to this site? आप उसको कैसे school portal create करेंगे? कैसे application download करेंगे? सबसे पहला स्टेप है, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है हमें जाना है क्रोम में schoolfitness.khiloindia.gov.in। इस पर जाने के बाद आपको ये जो इंटरफेस है, ये सारे पिक्चर्स आपके सामने आएंगे। सबसे पहला ये खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस प्रोग्राम फॉर स्कूल्स, दिस विल कम। यहाँ पर हम आपको साइन अप कर रहे हैं। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ये है कि आप क्रोम में जाएंगे, क्रोम में schoolfitness.khiloindia.gov.in टाइप करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये फर्स्ट पेज खुल करके आएगा, खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस प्रोग्राम फॉर स्कूल्स, जिसमें हमें साइन अप करना है विद द फॉर्मल इंफॉर्मेशन ऑफ स्कूल की फॉर्मल इंफॉर्मेशन के साथ हमें इसे रजिस्टर्ड करना है, जिससे हमें स्कूल का यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा और उसी में हमें सारा डेटा अपलोडिंग करना है। वही हमारा की फेस होगा हर स्कूल का। तो लेट्स सी फर्स्ट कि हमें रजिस्टर्ड कैसे करना है और उसका यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास कैसे आएगा। दिस I'll be sharing you with the video and meanwhile I'll be explaining you also। हमें ये वीडियो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। These are simple things but you need to pay attention। आपको इसमें ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। I'll be also explaining you। सबसे पहले स्कूल का रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है। स्टेप नंबर 1, अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर करना है। कंप्यूटर साउंड ऑन नहीं है। ओके सर, I'll check it out। अब ऊपर मोर होगा, मोर में जाओ आप, टॉप में मोर में शो कंप्यूटर साउंड। सर I have to do this। टॉप राइट में जाओ आप। Yeah, जी सर। Can I do it little again? आप चलाओगे तभी पता चलेगा कैसे पता चलेगा। Select board or school chain. Now it is audible? After that, select your board. Yeah, it's audible, thank you। ठीक है it's Okay। The moment आपने जैसे ही साइन अप का बटन क्लिक किया, उसके बाद आपके पास ये पेज खुल करके आता है और इस पेज में वो आपके स्कूल की डिटेल्स मांगता है। सबसे पहले आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होता है कि आपका स्कूल किस बोर्ड से है। Enter your school UDICE code. Select zone. Select region. Select state. Select city. Enter your complete school name. Select shift, morning or evening. If your school run in 2 shifts, you can enter both the shifts और जिस भी शिफ्ट में आपका स्कूल चलता है वो भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मेक श्योर अपने स्कूल की ऑफिशियल डिटेल्स भरें।
ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, एवरीथिंग जो आपके स्कूल के हेड और आपका स्कूल एक्सेस करता है, ऑफिशियल डिटेल्स, नॉट योर पर्सनल डिटेल। मोबाइल नंबर से लेके कोई भी डिटेल आपको पर्सनल नहीं, आपको ऑफिशियल डिटेल्स फिल करनी है इसमें। Enter your school official mail ID. One OTP is sent on this mail ID. मेक श्योर जो आप ईमेल आईडी डाल रहे हैं, जो आप मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, दिस इज एक्सेसिबल व्हाइल रजिस्टरिंग। रजिस्ट्रेशन के वक्त आप उन दोनों, उस मोबाइल नंबर को भी और ईमेल एड्रेस को भी एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि वहां पर ओटीपी जाएगा जिसकी कंफर्मेशन आपको देनी है। जैसे ही आप इसको कंफर्मेशन देंगे तब वो मूव फॉरवर्ड होगा, तब वो अगले स्टेप की तरफ जाएगा। तो वो मोबाइल नंबर और वो मेल आप दोनों एक्सेस कर पाए उस वक्त। To sign up on Khelo India National Fitness Program for schools, go to schoolfitness.kheloindia.gov.in. Click on this sign up button. This new school self-registration page will open. Certain school details will be required. Select board or school chain. After that, select your board. Enter your school UDICE code. Select zone. Select region. Select state. Select city. Enter your complete school name. Select shift, morning or evening. Enter your school official mail ID. One OTP is sent on this mail ID. Enter that OTP. Verify. OTP verified successfully. Click on this close button. Enter your school mobile number. OTP has been sent on your mobile number. Please enter that OTP. Click on verify button. Close. Enter your complete school address. Enter school website address. In school description, enter approx strength of your school. School admin details. Enter the name of your school HM or principal. Select designation. Select gender. Enter CAPTCHA. Check the entries that you have made. Click on submit button. One message has come, school added successfully. Now you have received one mail on your school official mail ID. This is the mail. This is when After sign up, the moment you will complete your submit, your sign up, you will receive, आपके पास एक immediately एक official email ID में जो आपने mail submit किया है, जो लिखा था आपने, उसमें आपको एक mail आएगा, एक confirmation mail कि आपका स्कूल खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस प्रोग्राम का हिस्सा है, रजिस्टर्ड हो चुका है उसमें, और उसको पोर्टल को आपको एक्सेस कैसे करना है, उसका आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, स्टेप बाय स्टेप यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। आपके पास उसका स्टार्टअप से लेकर के उसकी हाउ टू जनरेट QR ID कार्ड, हाउ टू जनरेट, हाउ टू अपलोड द डेटा, ऑल द वीडियोज, ऑल द असेसमेंट डिटेल्स, एवरीथिंग। अल्टीमेटली मीन्स दिस ईमेल इज की। आपके पास ये जो मेल आया है, दिस इज की। इसमें हर स्टेप वाइज पूरी डिटेल्स दी हुई है इस प्रोग्राम की, हाउ टू टेक अप दिस प्रोग्राम। दिस इज इम्पोर्टेंट मेल। welcome mail for school principal or HM.
This mail is of school activation on Khelo India School portal. These are account details for Khelo India School portal. To get started, you have to follow these steps. First of all, click on this schoolfitness.kheloindia.gov.in. This Khelo India portal gets open. Click on this login button. दिस इज द इंटरफेस. जब भी आप खेलो इंडिया की साइट पर जाएंगे, दिस इंटरफेस विल कम. सबसे पहले इसी पे आपने साइन अप करना है और उसके बाद जब भी आपको स्कूल पोर्टल पर जाना है आप इसी पे लॉग इन करेंगे. और ये दिस इज द इनिशियल इंटरफेस. और आप नीचे देख सकते हैं एडमिन मैनुअल, टेस्ट वीडियोस, डेमो वीडियोस, एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, एवरीथिंग इज देयर. इस पोर्टल में आपके पास सारी की डिटेल्स आपको मिलेंगी. Enter the user ID and password which you have received. Enter CAPTCHA here. Click on sign in button. This is home page of Khelo India portal. साइन अप करने के बाद जब आप लॉग इन करते हैं तो फर्स्ट टाइम इस तरह से आपका फर्स्ट पेज इंटरफेस ओपन होगा और उसमें जो अभी स्ट्रेंथ आपको दिख रही है, स्टूडेंट अपलोड 0, अप्रूव्ड एसएसएस 0, क्योंकि अभी हमने सिर्फ स्कूल को रजिस्टर्ड किया है. ये आपके पास पोर्टल अपने स्कूल का बन करके इस तरह से आएगा. उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम अपलोड करेंगे, हम एसएसआर को असाइन करेंगे. इनिशियली इट विल कम लाइक दिस आफ्टर साइनिंग अप. फर्स्ट लॉगिन में इस तरह से आएगा. उसके बाद स्टूडेंट डेटा कैसे अपलोड करना है, फर्दर स्टेप्स विल बी एक्सप्लेनिंग यू, लेकिन फर्स्ट इंटरफेस इस तरह से आएगा. तो School fitness app statistics. Till now, students' data has not been uploaded. Neither the assessors are approved. So this is how you sign up on Khelo India portal. Thank you. दिस यू हैव सीन. आपको साइन अप कैसे करना है. उसके बाद जब आप लॉग इन करते हैं, लॉग इन करने के बाद आपका फर्स्ट इंटरफेस कैसा आएगा, आपके पास जो ईमेल आएगा, जो कंफर्मेशन ईमेल आएगा आपके ऑफिशियल डिटेल्स पर, वो ईमेल ये इस तरह का एक ईमेल होगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्रोम पर किस पोर्टल पर जाना है, आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्या हैं आपको स्कूल का डेटा अपलोड करना है, क्यूआर आईडी कार्ड जनरेट करने हैं स्टूडेंट्स के, आपको एसएसएस को अटैच करना है अपने पोर्टल से. आपको उस लास्ट स्टेप, आपको आफ्टर टेकिंग असेसमेंट्स आप स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड कैसे जनरेट करेंगे. ऑल द डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप्स, प्रॉपर 5 स्टेप प्रोसेस विल बी गिवन इन दिस ईमेल आईडी. अच्छा, जैसे कॉमन प्रॉब्लम वी आर फेसिंग कि कई बार स्कूल्स का होता है क्योंकि फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में ही हम इसको यूज कर रहे हैं और बाकी काम हम एप्लीकेशन से कर रहे हैं. पोर्टल इज यूज्ड इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म एट द टाइम ऑफ डेटा अपलोड और एट द टाइम ऑफ रिपोर्ट कार्ड जनरेट. तो सम टाइम इट हैपन कि हम रिपोर्ट स्कूल अकाउंट डिटेल्स मिस कर देते हैं. तो इफ यू लॉस द डिटेल्स ऑफ योर अकाउंट, आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपसे मिस हो गई है, आप अपना यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी मिस किए, आप यू हैव टू जस्ट गो टू रिकवरी योर अकाउंट और वहां पर आप स्कूल कोड, यूडाइस कोड, यूजर नेम, योर ईमेल एड्रेस, योर मोबाइल नंबर, जो आपने साइन अप के वक्त पोस्ट किए थे, जो आपने साइन अप के वक्त सबमिट किए थे, इन चारों में से स्कूल कोड, यूडाइस, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, इन चारों में से कुछ भी आप डालेंगे अलॉन्ग विद द कैप्चा, वो इमीडिएट आपके पास एक ओटीपी आएगा उस नंबर पर, उस मेल पर. उस ओटीपी को सबमिट करते ही आपको अपना अकाउंट, आपकी डिटेल्स रिकवर हो जाएंगी. यू विल गेट दैट इफ इन द केस यू लॉस्ट योर पासवर्ड और समथिंग. अभी हमारा डेटा, हमने स्कूल रजिस्टर्ड हो गया है. अब स्कूल रजिस्ट्रेशन के बाद सेकंड स्टेप है पीटी टीचर रजिस्टर्ड होना चाहिए. पीटी टीचर कैसे रजिस्टर होगा, जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली सर हैव एड्रेस यू कि हमें गूगल प्ले स्टोर से जाकर के खेलो इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, स्कूल वर्जन जिसका इंटरफेस वाइट है. वहां पर आपको 2 एप्लीकेशन मिलेंगी खेलो इंडिया की. हमें डाउनलोड करनी है एसएसआर को, टीचर को डाउनलोड करनी है स्कूल वर्जन जिसका इंटरफेस वाइट है. उसको हमें डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और साइन अप करना है अपनी पर्सनल डिटेल्स के साथ.
मेक श्योर जब हम स्कूल रजिस्टर्ड करते हैं तो स्कूल की ऑफिशियल डिटेल्स डालेंगे, और जब हम व्हेन वी आर साइनिंग अप फॉर एप्लीकेशन हम अपनी पर्सनल डिटेल डालेंगे। अगर 10 पी टीचर्स हैं तो सबके सब अपनी अपनी अलग अलग फोन में उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और अपनी अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स उसमें डालेंगे। अब हाउ टू इंस्टॉल एंड साइन अप दिस एप्लीकेशन इन योर मोबाइल, प्लीज सी। This is Khelo India application. Please click on Start Fitness Assessment. Click on Sign Up button. Please enter your name. Enter your correct email address. It should be your personal email address. Please enter your phone number. Enter your school address. It is optional. Please enter your state. Mine is Delhi East. Enter your district. Enter your city name. Enter your block. Enter your qualification, gender. Have you attended any TOT? Please Yes, if you have any attended any TOT, teachers training, अगर आपने अटेंड किया है तो आपके पास उसका एक कोड दिया गया होगा आपको, आप वो डालिए। अगर आपने कोई ऑफलाइन TOT अटेंड नहीं करी है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। एंड मेक श्योर, जैसे मैंने पहले भी कहा है, इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, और अभी जब TOT का कोड आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इफ यू हैव अटेंडेड एनी TOT, आप उसका कोड डालिए। select this if you are attending any TOT, and if you are not attending, please leave it. Take the remaining 2 boxes and click on Sign Up button. So this आपके पास जब ये आपका आईडी आया, आपका ट्रेनर आईडी आया, यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इट इज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ असाइनिंग यू विद द स्कूल। जब आपको स्कूल से अटैच किया जाएगा उस वक्त आपके पास ये ट्रेनर आईडी होना चाहिए। This is the trainer ID. You have to take screenshot of it, and when we will go to manage assessor on Principal HM portal, it will be required. Thank you. Okay, we have completed 2 steps. हमने स्कूल को रजिस्टर्ड करा दिया, हमने अपने एसेसर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, उसको साइन अप कर लिया, हमारे पास ट्रेनर आईडी आ गया, और उस ट्रेनर आईडी में हम आने के साथ साथ जिसका हमने स्क्रीनशॉट लिया, आपके पास एसेसर के पास भी एक ईमेल आएगा जो कि आपका कंफर्मेशन ईमेल होगा कि आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, आपका यूजर नेम ये है, आपका पासवर्ड ये है। उसमें भी आपको डिटेल्स दी जाएंगी, गाइडलाइंस होंगी कि स्टेप 1 आपको क्या करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको स्कूल के साथ कैसे अटैच होना है, कैसे मैनेज एसेसर में आप जाकर के अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके आप खुद को स्कूल के पोर्टल के साथ अटैच करा सकते हैं, और आपको उसके साथ साथ एक फर्दर डिटेल्स, आपको उस असेसमेंट्स का मैनुअल, वीडियोस, एवरीथिंग जो आपको एक असेसमेंट से पहले तैयारी के लिए जरूरत है, वो हर डिटेल लिटरेचर आपको का लिंक आपको इस ईमेल में दिया जाएगा, सो दैट आप उसको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि हमें टेस्ट लेना कैसे। ऑल द वे हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन यही डिटेल आपको जैसे ही आप उसको साइन अप करेंगे आपके पास एक मेल में लिंक आएगा, सो दैट यू कैन गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन। क्योंकि फर्स्ट टाइम में ऐसे इजी है, लेकिन आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको लिंक्स दिए गए कि आप उन लिंक्स को एक्सप्लोर करें, उनको देखें, उनको समझें, एंड देन यू आर रेडी
technically you are equipped to take the assessments. This is the 2 steps we have done. School registration we have done. हमने SSL एप्लीकेशन डाउनलोड करके साइन अप कर लिया है. अब हमारा स्कूल का पोर्टल, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 0 फर्स्ट इनिशियली लॉगिन में वो 0 स्टूडेंट दिखाएगा. अब हम अपने स्कूल का डेटा उसमें हमें अपलोड करना है, उस पोर्टल को रेडी करना है जिसमें हमारे स्कूल का पूरा डेटा अपलोड होगा, जिससे कि हम जब असेसमेंट्स लेंगे तो वो ही सर्वर से पिकअप होगा वो डेटा. तो वो डेटा हमें कैसे अपलोड करना है अपने स्टूडेंट्स का, वो हम इस वीडियो में देखेंगे. शॉर्ट वीडियो है, लेकिन आई रिक्वेस्ट कि सब लोग उसको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए, हर स्टेप के बाद क्या क्या है. हाउ टू अपलोड स्टूडेंट डेटा. आपको स्कूल पोर्टल पर स्टूडेंट का डेटा कैसे अपलोड करना है. So now, as you have received user ID and password for your principal HM, so first of all what you have to do now is you will go to schoolfitness.kheloindia.gov.in. After that you will click on login button. Enter the user ID and password here which you have received. Your official आपके स्कूल पोर्टल के लिए जो स्कूल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड आया है स्कूल का, आप वो डालेंगे इसमें. Enter CAPTCHA. Click on this sign in button. So this is the page of your school for Khelo India, and these are school fitness app statistics. Here you can see till now no student has been uploaded. So to upload students data we have to go on student. We will click on student data upload. अभी हमारा जो इंटरफेस ओपन हो गया है जिसमें हमारे स्कूल का डेटा अभी अपलोड नहीं है, वो 0 दिखा रहा है. स्टूडेंट डेटा अपलोड करने के लिए फर्स्ट थिंग टैब नंबर 2 दूसरे टैब पर जहां पर स्टूडेंट है वहां पर उस पर क्लिक करने के बाद हमें स्टूडेंट डेटा अपलोड पे क्लिक करना है. ठीक है, स्टूडेंट में गए, स्टूडेंट डेटा अपलोड पे क्लिक किया, उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन होकर के आएगा. Now by default my school name is already there. I have to select profile. I will select it as personal profile. Now you can see 3 orange. Okay. आपने जब अपने स्कूल का नेम सेलेक्ट किया उसके बाद आपके पास सेलेक्ट प्रोफाइल पे आप जब क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली आपके पास पर्सनल प्रोफाइल नेम से ही एक फाइल ओपन होकर के आएगी. ठीक है, आप जस्ट सी इट केयरफुली. ये पर्सनल प्रोफाइल, क्योंकि जो हमारी फाइल, जो भी हमारी एक्सेल फाइल जिसे हम डेटा अपलोड करेंगे उसका नाम हमारा पर्सनल फाइल ही रखना है जिसमें दोनों P कैपिटल है. नो पर्सनल प्रोफाइल 1 2 3 नो. उसके साथ मेक श्योर द नेम ऑफ द प्रोफाइल व्हिच यू आर गोइंग टू अपलोड इज ओनली पर्सनल प्रोफाइल. अब उस फाइल को क्रिएट कैसे करना है, आप ये नीचे 2-3 डार्क ऑरेंज कलर के बटन्स देख रहे हैं. आप इसमें देखिए फर्स्ट है डाउनलोड टेम्पलेट. व्हाट इज दिस डाउनलोड टेम्पलेट? ये डाउनलोड टेम्पलेट है क्या? ये डाउनलोड टेम्पलेट है जिसमें एक आपको ब्लैंक रेडीमेड एक्सेल फाइल दी जा रही है जिसमें आपको अपने स्कूल का डेटा कॉपी पेस्ट करना है. मतलब आपको एक्सेल शीट बनानी नहीं है, आपको एक रेडीमेड एक्सेल शीट दी जा रही है जिसमें आपको अपने स्कूल का डेटा कॉपी पेस्ट करना. अब वो डेटा कॉपी पेस्ट करना क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसके लिए आपको सेकंड बटन पर देखिए जहां पर लिखा है सैंपल डेटा. आप इस पर क्लिक करेंगे, एक सैंपल डेटा की फाइल डाउनलोड होगी. मींस जिसमें दिखाया जाएगा कि ये आपको एंट्रीज करनी है. वो 2 कलर्स में डिवाइड है, दैट आल्सो विल बी सीइंग इट. और उस सैंपल डेटा, जैसे कि सैंपल डेटा में वो फाइल मेंटेन है, सेम हमें डाउनलोड टेम्पलेट में उस एक्सेल फाइल में जो हमें मिली है डाउनलोड टेम्पलेट से, उसमें हमें डेटा बनाना है और उसके बाद हम उसे अपलोड करेंगे. Colored buttons have come up. So first of all click on this download template. One Excel sheet named personal profile will get downloaded. Open this file. So in the first row you can see there are 2 colors. First one is orange and the second one is yellow. The fields in the orange color are mandatory for you
and the fields in yellow are not mandatory for you. जब आप डाउनलोड टेम्पलेट जो आपके पास पर्सनल प्रोफाइल के नाम से फाइल आई है वो ओपन करेंगे आप उसमें देखेंगे दो कलर कोडिंग दी हुई है, एक ऑरेंज कलर डार्क येलो है और दूसरा येलो है। तो जो डार्क येलो ऑरेंज कलर है जो जिसमें स्कूल कोड, स्टूडेंट नंबर, नेम, जेंडर, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, डीओबी, यहाँ तक ये डिटेल टिल A to H ये डिटेल्स आपकी मैंडेटरी है उस स्टूडेंट्स की डेटा अपलोडिंग के लिए, स्टूडेंट का QR आईडी कार्ड जनरेट करने के लिए, उस स्टूडेंट की डिटेल्स को सबमिट करने के लिए ये मैंडेटरी डिटेल्स हैं। उसके बाद जो डिटेल्स हमारे पास आ रही है ये येलो कलर में होम टाउन, फेवरेट स्पोर्ट्स, हॉबीज, दीज आर नॉट मैंडेटरी, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें आपके पास अवेलेबल है पूरे स्कूल का ये डेटा आप भरिए, अगर नहीं अवेलेबल है आप मत भरिए। लेकिन जो A to H डार्क ऑरेंज कलर में ये जो एंट्रीज है ये मैंडेटरी है डेटा अपलोडिंग के लिए। So you are required to fill up all the fields that are in orange color. In the first column, you have to enter school code. In the second column, you will enter student admission number. In the third column, name of the student. After that, gender, class, section, roll number, and date of birth. Save the data. जब आप ये एंट्रीज डाल रहे हैं मेक श्योर द फॉर्मेट इज सेम। अगर आपने जेंडर मेल फीमेल यूज किया तो प्लीज यूज मेल फीमेल ओनली। इट इज नॉट कि क्लास 1 में आपने बॉयज गर्ल्स डाल दिया देन 6 ऑनवर्ड मेल फीमेल डाल रहे हैं। नो, सेक्शंस ABCD के फॉर्मेट में डाल रहे हैं तो ABCD की ही फॉर्मेट में डालिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास 1 to 3 में आपने सनफ्लावर एंड ऑल दीज यू ऑल हैव पुट इट, सेम फॉर्मेट में आपको रखना है। Now click on this choose file button. Select personal profile in which we have uploaded students data. Click on open. जब आप आपने जिस फाइल को डाउनलोड किया था उसके बाद उस फाइल में आपने अपना डिटेल्स करी है जो कि पर्सनल प्रोफाइल जिसमें दोनों की कैपिटल है के नाम से सेव किया है, उसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए सो दैट इजियर फॉर यू। और उसके बाद उसको अपलोड फाइल में चलेगा। After that, click on this upload button. Now we have successfully uploaded the students' data. One message has come up. Thank you for uploading the data. Your request has been submitted. So this is how we upload the student. अगर आपकी फाइल में कोई भी एरर होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो एक एरर फाइल वहां से आपको मैसेज आएगा इसी इंटरफेस पे जो अभी हम आपको दिखाएंगे। वो आपको प्रॉपर दिखाएगा कि इस रो में इस कॉलम में आपने ये मिस्टेक करी है, ड्यू टू दैट सर्वर इज नॉट टेकिंग अप योर फाइल। वो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा डेटा एब्सोल्युटली सही था, हमारा डेटा इसलिए वो अपलोड हो गया। लेकिन मान के चलिए आपने स्कूल कोड किसी एक बच्चे का गलत टाइप कर दिया, उसकी वजह से पूरी फाइल स्टॉक हो जाती है। फिर उसको रिजॉल्व कैसे करना है? आपके स्कूल की स्ट्रेंथ 500 है तो आप 500 बच्चों में से देख नहीं सकते कि मेरी फाइल कहाँ गलत है। लेकिन यहाँ पर आपको वो रेडीमेड आपको बताएगा कि इस रो में इस कॉलम पर जाइए, यहाँ पर गलती है, so then you can rectify it easily. Students data. Click on home button. Now you can see the students which we have uploaded. It is just the number of students uploaded 9. It is just एक आपको एक फील है कि एग्जाम्पल हमने 9 बच्चों का डेटा अपलोड करके आपको दिखाया है। आप जितने भी बच्चों का डेटा अपलोड करेंगे 500, 1500 वो एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। अभी जो आपको 9 नंबर दिख रहा है इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। जो हमने 9 बच्चों का आपके सामने अभी डेटा अपलोड किया ये वो है। Can also be seen on this home page. This is how we upload the students' data. Thank you. We have completed till the time 3 steps. हमने स्कूल रजिस्टर्ड कर लिया, हमने टीचर SSS साइन अप कर लिया है, हमने स्टूडेंट का डेटा अपलोड कर लिया है। जब स्टूडेंट का डेटा, जैसे मैंने कहा था कि स्टूडेंट डेटा अपलोड करते वक्त दिस इज गुड वंडरफुल कि आपकी फाइल एक बार में सबमिट हो जाती है। लेकिन अगर उसमें बाय मिस्टेक कहीं पर किसी भी कॉलम में आपने कोई गलती कर दी है
तो वो आपको एरर शो करेगा, वो एरर फाइल आपको दिखाएगा, उस एरर फाइल को आपको रिजॉल्व कैसे करना है, दिस वी आर शेयरिंग। स्टेप नंबर 4 कि आपको अगर आपके डेटा में कोई मिस्टेक है तो वो किस तरह से फाइल जनरेट होगी और आपको कैसे रेक्टिफाई करना है उस प्रॉब्लम को। If some errors come in uploading students' data, let's see how to rectify them. First of all, go to schoolfitness.kheloindia.gov.in. Click on this login button. Enter user ID and password. Enter CAPTCHA. Click on sign in button. Select student. Student data upload. Select profile. Click on download template. Open this personal profile sheet. So this is the Excel sheet where you have to upload the student's data. Here you will enter school code. This is the school code which you have to enter. Here you will enter student admission number, name of the student. अब डेटा अपलोडिंग का प्रोसेस सेम फॉलो कर रहे हैं। अब आगे आप देखेंगे डेटा अपलोडिंग में जब हमें प्रॉब्लम आई, अभी तक सेम वी आर फॉलोइंग व्हिच वी हैव लर्न हाउ टू अपलोड द डेटा। Enter gender here. You can enter gender in the form of male, female, boy, girl, M, F, B or G. Class you have to enter in Roman form. Enter alphabets in section. Enter roll number here. Date of birth. In date of birth you have to follow the format of dd/mm/yyyy. So this is the dummy data which we have entered. Save this data. Now let's try to upload this data. Click on choose file. Open personal profile sheet. Click on upload button. Some errors have been detected in Excel sheet. The moment you have uploaded your file, यहाँ तक हमने देखा था कि हम डेटा अपलोड करते हैं सक्सेसफुली हो गया था, लेकिन इस सीन में आप देखिए आपने डेटा अपलोड किया और आपका डेटा सक्सेसफुली अपलोड नहीं हुआ है। यहाँ पर एक रेड कलर में एक एरर लिख करके आएगा और एरर के साथ साथ आपको फाइल भी आएगी। आपको वो एरर फाइल डाउनलोड करनी है कि ये फाइल और जो फाइल डाउनलोड होकर आ रही है उसमें आप देखेंगे कि इस फाइल में आपको डिटेल्स दी हुई है किस कॉलम में आपने क्या गलती करी है। तो अगर आपके डेटा फाइल में जब एरर आएगा तो यहाँ पे एक रेड कलर से एक लिखा हुआ मैसेज आएगा और उस मैसेज के साथ वो फाइल आएगी। Download the error log file and rectify your sheet accordingly. Click on this download button. Open this sheet. So these are error. आपने एरर फाइल को डाउनलोड किया, उसको ओपन किया, वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इस रो नंबर में, इस रो में, रो नंबर 38 समथिंग में, 2 में, 3 में एंड अगेन 7 में आपके पास ये एरर डिटेल्स हैं। आपको वो बता रहा है कि यहाँ पर आपका स्कूल कोड इज नॉट मैचिंग विद द कनेक्टेड स्कूल, आपका स्कूल कोड गलत कर दिया आपने, डुप्लीकेट एंट्री कर दिया आपने, एक ही रोल नंबर एक ही नाम 2 बार हो गया है। तो दोनों मतलब आपको DOB इज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, आपने ऊपर आपने जो फॉर्मेट में आप DOB डाल रहे थे नीचे आपने दूसरे फॉर्मेट में डाल दी, वो आपको एरर दिखाएगा यहाँ पर कि क्या एरर है, जो आप उसको रेक्टिफाई करिए उस रो में जाकर के अनकंफर्टेबली। मतलब आपको 500 बच्चों में से 1500 बच्चों में से आपको पता है कि ये 3 गलतियां मेरे से हुई हैं, तो इमीडिएटली इट विल टेक 2 मिनट्स, आप रेक्टिफाई करके उसको रीअपलोड कर सकते Error details. In row number 10, school code is not matching with the selected school. In row number 2, duplicate student UID. In row number 3, duplicate student UID. And again in row number 3, date of birth is not in correct format. So let's correct these details. Go to the personal profile sheet. Change the school code.
चेंज द स्कूल Correct. कोड मींस कि जो गलती आपने उस, क्योंकि वो दिखा रहा था कि कॉलम नंबर रो नंबर 10 में आपने कोड गलत डाला, इसलिए उसको ठीक करिए। तो जो भी आपकी मिस्टेक्स वो दिखाएगा, आप उनको उस पर्टिकुलर कॉलम रो में जाकर के उसको रेक्टिफाई करिए। Correct student admission number. Correct the date of birth here. Save the changes that you have made. Now try to re-upload the personal profile sheet. Click on choose file. Select personal profile sheet. Open. Click on upload button. One message has come. Thank you for uploading the data. Your request has been submitted. जहां पर ये रेड लाइन से एक मैसेज आया था कि एरर, वहां पर ही आपको मैसेज आ जाएगा थैंक यू फॉर अपलोडिंग योर डेटा। वहां पर ही बिल्कुल डाउनलोड टेम्पलेट के नीचे एक लाइन में लिख करके आ जाएगा थैंक यू फॉर अपलोडिंग योर डेटा, योर डेटा इज सबमिटेड। So this is how you upload the students data, and if error comes you rectify this way. Thank you. ओके, स्कूल रजिस्टर्ड कर लिया, एसएसआर को साइन अप कर लिया, स्टूडेंट डेटा अपलोड कर लिया। अब हमारे को करना है, हमें स्टूडेंट आईडी जनरेट करना है। जैसे कि अभी बताया भी था सर ने आपको कि स्टूडेंट आईडी कार्ड जो है हमारे यहाँ पर, हम क्यूआर बेस्ड आईडी कार्ड्स आपको जनरेट कर सकते हैं, जो कि वाइल टेकिंग टेस्ट आप स्कैन करेंगे। तो मैनुअली आपको कुछ काम नहीं करना। दैट हमारा ऐप जो इतना स्मार्ट है, आपको कोई काम मैनुअली नहीं करना, लेकिन उसके लिए आपको इस डैशबोर्ड को, अपने स्कूल पोर्टल को रेडी करना है। Now to download students fitness ID cards, first of all you have to log in. Enter principal HM user ID and password. Enter CAPTCHA. Click on sign in button. Now here you have to go on student. ओके, Click on स्टूडेंट डेटा अपलोड। आधे घंटे में खत्म नहीं होगा। स्टूडेंट डेटा अपलोड पर हम जब हमें स्टूडेंट का डेटा अपलोड करना था, उस वक्त भी हम स्टूडेंट में गए थे, फर्स्ट टैब पे क्लिक किया था स्टूडेंट डेटा अपलोड। अभी हमें क्यूआर आईडी कार्ड जनरेट करने हैं, तो हम उसके स्टूडेंट के नीचे जो सेकंड टैब आ रहा है स्टूडेंट लॉगिन पासवर्ड, हम इस पर टैप करेंगे। student login password, select the school, select the class of which you want to download the fitness ID card, click on view button. So these are the students in आपने class. स्कूल सिलेक्ट किया, स्कूल के बाद आपने क्लास सबमिट किया, और क्लास सबमिट करने के बाद आप व्यू करेंगे, जो कि अभी हमारे पास, क्योंकि हमने सैंपल डेटा है इसलिए 2 है। अदरवाइज अगर आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, आप ऊपर शो एंट्रीज में आप 25, 50, 10 ऐसे कर सकते हैं, तो वो पूरा एक साथ पूरी क्लास आपको दिखाई देगी। उसके बाद आप नीचे उसके बाद उनको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, आपको प्रिंट करना है उनको। First A, click on this checkbox, click on this जैसे print. ही आपने चेक बॉक्स पर, ये शो एंट्रीज के नीचे जो चेक बॉक्स है, इस पे क्लिक किया, आप उसके बाद उन सारे बच्चों का जो क्यूआर आईडी कार्ड है वो जनरेट करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ है, टैब दी हुई है प्रिंट फिटनेस आईडी कार्ड्स। Print fitness ID cards. These are the ID cards. Click on this print button to print fitness ID cards. Thank you. हमारे पास स्टूडेंट का हमने डेटा अपलोड कर दिया, उसके बाद उनके क्यूआर कार्ड्स भी जनरेट कर लिए। अब हमारे पास एक लास्ट काम ये बचता है कि हम जो टीचर को, जिस टीचर को असेसमेंट्स लेनी है, वो टीचर उस पोर्टल से अटैच होना चाहिए, स्कूल पोर्टल से अटैच होना चाहिए। तो हम हाउ टू मैनेज एसेसर विद द स्कूल पोर्टल, स्कूल पोर्टल में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कितने एसेसर्स मैनेज कर सकते हैं, उसको हम असेसमेंट्स, वो उसके बाद एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब जो जो डेटा हमने स्कूल पोर्टल पे डाला था वही डेटा उसके बाद हमें एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। मैं अपने फोन पर
तो उस डेटा को फिर देख पाऊंगी और उसी डेटा से एप्लीकेशन से मैं टेस्ट लूंगी। So now to manage assessors on Principal HM page, you have to click on Manage Assessor. Here you have to enter trainer ID. थर्ड टैब, इस इंटरफेस के थर्ड टैब पे आप देखेंगे मैनेज एसेसर। आपने मैनेज एसेसर पे क्लिक किया, ये इंटरफेस खुल करके आएगा जिसमें लिखा होगा रजिस्टर्ड विद स्कूल और न्यू एसेसर। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम असाइन कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, तो आप न्यू एसेसर में जाएंगे और जिस आपके ट्रेनर आईडी का आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। एट द टाइम ऑफ साइन अप, जब एप्लीकेशन में आपने साइन अप के वक्त आपने जब साइन अप किया था उसके बाद आपका जो ट्रेनर आईडी आया था जिसका हमने कहा था कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, वो आईडी यहाँ पर आप टाइप करेंगे और आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। Click on search button. Now this is the trainer ID. This is the name of the trainer, mail ID of the trainer and contact number of the trainer. After that you have to click on activate button. This activate button is important क्योंकि the moment आप जैसे activate पर आपके HM आपके प्रिंसिपल जैसे ही आप इस activate पे क्लिक करती हैं आपकी डिटेल्स के साथ, जो कि आपने अपना ट्रेनर आईडी डाला उसके बाद आपकी डिटेल्स आई और जैसे ही एक्टिव किया गया आप उस स्कूल के असेसमेंट्स के लिए कनेक्ट हो गए, उस पोर्टल से कनेक्ट हो गए, उस स्कूल का डेटा आपकी एप्लीकेशन पर रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप पार्ट टाइम टीचर हैं या एक साथ 2 स्कूल्स में जॉब कर रहे हैं या यू आर मैनेजिंग 2-3 स्कूल्स टुगेदर एज अ पीई टीचर, तो आप 2 स्कूल्स भी आपको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे इस तरह यहाँ पर एक्टिवेट बटन आता है वैसे ही आफ्टर एक्टिवेशन डीएक्टिवेट बटन भी आता है। अगर आप स्विच ओवर करते हैं किसी स्कूल से दूसरे स्कूल में ज्वाइन कर रहे हैं, पुराना स्कूल आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप डीएक्टिवेट भी हो सकते हैं। मतलब आपको जब इस स्कूल से स्विच करना है तो आपको डीएक्टिवेट भी करवाना है खुद को, सो दैट उस स्कूल का डेटा आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, आप अपने साथ नहीं रखते हैं, तो वो उस स्कूल का डेटा उस स्कूल के पास रहता है और आपके पास अपने न्यू स्कूल का डेटा आ जाता है। सबसे पहले आपको एक्टिवेट किया आपके प्रिंसिपल ने, तो वो उस स्कूल का पोर्टल का डेटा आपके मोबाइल ऐप पे दिखेगा जिससे आप असेसमेंट्स ले सकते हैं उन बच्चों के। Are you sure you want to activate the selected assessor with your school? Click on yes button. Now click on registered with school. So now you can see the trainer is activated with this. आपने न्यू एसेसर पे मैनेज किया, उसके बाद एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट बटन के बाद आपने रजिस्टर्ड विद द स्कूल कर दिया। अब आप उस स्कूल से रजिस्टर्ड है, उस स्कूल की प्रिंसिपल ने आपको परमिट किया है अपने स्कूल्स के बच्चों का असेसमेंट देने के लिए। वो आपके अपने स्कूल के बच्चों का डेटा आपके साथ मोबाइल ऐप पे शेयर करें, बेसिक डेटा। School, and he has also received user ID and password for Khelo India Fitness Assessment mobile application on the mail ID which was entered while doing sign up on Khelo India mobile application. This is the mail which was received. This is the user ID and password. Using this user ID and जैसे ही आपके प्रिंसिपल ने आपको असाइन किया, अपने स्कूल के साथ अटैच किया, आपके पास एक मेल आ जाएगा, कंफर्मेशन मेल कि यू आर मैप्ड विद सो एंड सो स्कूल, कि आपको इस स्कूल के साथ अटैच किया गया है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड ये है और इसी से आप उसको एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे। password, he can log in the mobile application and can start fitness assessment. Thank you. अभी तक हमने देख लिया, हमने स्टूडेंट डेटा अपलोड कर लिया, एसेसर हमने असाइन कर दिया, उसके बाद एसेसर को हमने अटैच भी कर दिया और दोनों टर्म का अभी असेसमेंट्स क्या लेने हैं वो आपको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि हमने दोनों टर्म का असेसमेंट ले लिया, ईयर एंड। अब हमारे पास जब बच्चे नेक्स्ट ईयर में प्रमोट करने हैं तो हर साल हमें डेटा अपलोड नहीं करना, वी डू नॉट नीड टू अपलोड द डेटा एवरी ईयर। हमें सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस डेटा को ही प्रमोट करना है और जो बच्चे +2 या स्कूल छोड़ते हैं या स्कूल चेंज करते हैं या स्कूल से पास आउट हो रहे हैं उनको हमें ट्रांसफर करना है। सिर्फ हमें
मतलब करेक्शन करना उस फाइल में, उसको रीअपलोड, ऐसा नहीं कि 1500 बच्चे तो आप दोबारा फाइल बना रहे हैं उनकी, उसको प्रमोट करना है। क्लास 1 का बच्चा 2 में कैसे जाएगा, तो हाउ टू प्रमोट दैट डेटा, दिस वे आर लर्निंग इन दिस फाइल। ये टेक्निकल चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और एक दो बार आप एक्सप्लोर करेंगे, यू विल बी थ्रू विद दिस। इट्स नॉट अ टफ, लेकिन यस इट रिक्वायर्ड योर अटेंशन। To promote students, click on Student, Student Login Password, select School, select Class, click here to promote. These are current classes, these are after promotion classes. Click on this Promote button. Click on I agree. Now to delete students record. आपने उन क्लासेस को सेलेक्ट किया और उनको प्रमोट कर दिया। अब हम बात करें कि हमें जो ट्रांसफर करना है डेटा, जो बच्चे हमारे पास आउट हो गए हैं, जो या सो स्विच कर रहे हैं, उनको हम कैसे ट्रांसफर करेंगे। Click on select school, select class, click on view button, select the student, click on edit. हम क्लास सेलेक्ट करने के बाद जब व्यू पे जाएंगे तो हमारे सामने जो जिस क्लास की लिस्ट हमने सेलेक्ट करी उस पूरी क्लास की लिस्ट सामने आ जाएगी, और जिस बच्चे का हमें ट्रांसफर करना है, एडिट करना है, वो हम उस पर्टिकुलर उस बच्चे पर क्लिक करेंगे, उस बच्चे के नाम पर हम क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी जिसे हम ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से ये आएगा एडिट स्टूडेंट डिटेल्स, जिसको हमें ट्रांसफर करना है। To transfer or to delete student, click on transfer. Click on yes button. Thank you. So हमने ये 5 स्टेप्स प्रोग्राम स्टडी किया, देखा स्टेप बाय स्टेप, स्कूल रजिस्टर्ड किया, एसेसर को साइन अप किया, उसके बाद डेटा अपलोड किया, उसके बाद हमने मान के चला कि हमारे डेटा इज रेडी, हमारा पोर्टल रेडी है असेसमेंट के लिए। अब हमें असेसमेंट्स लेना क्या है, हमें क्या असेसमेंट्स, हमारे बैटरी ऑफ टेस्ट क्या है, ये मैं हिमांशु सर से रिक्वेस्ट करूंगी। हिमांशु सर प्लीज प्लीज। Thank you very much, madam. Am I audible? या सर। ओके, सभी को नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु जायसवाल है। मैं केंद्रीय विद्यालय हेलो। हाँ हेलो सर, आवाज आ रही सर आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है। है? या ओके सर, स्क्रीन शेयरिंग कौन करेगा? नीरज मैडम। ओके ओके सर। या Let's go to the next slide. जी सर। सर एक्चुअली स्लाइड मुझे दिख नहीं रही है। अभी दिख रही है हिमांशु? नो सर। तो फिर नीरज को करने दो आप। Neeraj, you can continue then. Okay sir, okay sir. Just go to the next one because we have time. Yes, sir. स्क्रीन दिख गया है। यस सर, दिख रही है। हेलो। या तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि खेलो इंडिया के बैटरी ऑफ टेस्ट को 2 एज ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला एज ग्रुप है 5 to 8 इयर्स का, क्लासेस 1 to 3 के लिए, और नेक्स्ट एज ग्रुप है क्लास 4 to 12 के लिए, जो है 19 to 18 प्लस इयर्स एज के लिए। तो हम बैटरी ऑफ टेस्ट चलते हैं पहले एज ग्रुप यानी कि क्लास 1 to 3 के लिए, जिसमें 3 टेस्ट हैं। पहला है BMI, तो हम अगली स्लाइड में चलते हैं जिसमें हम BMI बॉडी मास इंडेक्स के बारे में देखेंगे। बॉडी मास इंडेक्स जो है वो हमारे जो सब्जेक्ट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स एंड फैट इन बॉडी को तो मेजर करने का एक तरीका है। मैडम प्लीज प्ले द वीडियो प्लीज। To calculate the body mass index, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. जैसे ही हम लोग इसको असेसमेंट करने के लिए खेलो इंडिया फिटनेस असेसर ऐप को ओपन करेंगे, उसमें टेक टेस्ट ऑप्शन पे जाने के बाद हमारे पास वेरियस ऑप्शंस आएंगे, जिसमें से हमें
जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है BMI ऑप्शन पे क्लिक करना है। From various test options, select BMI. The app is now ready to calculate the body mass index. जैसे ही आप BMI ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एप्लीकेशन का स्क्रीन खुल जाएगा जिसमें आपको बच्चों की हाइट और वेट कैलकुलेट करके डालना है, जिसमें से हाइट सेंटीमीटर में और मिलीमीटर और वेट जो है किलोग्राम एंड ग्राम्स में हमें कैलकुलेट करना है। Body mass index or BMI is used to measure the body composition, which refers primarily to the distribution of muscles and fat in the body. Body size such as height, length and girth are also grouped under this component. BMI जो है हम ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम बच्चों के मसल्स और फैट्स में जो बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मसल्स और फैट्स है उसे हम कैलकुलेट कर सकें। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले फ्लैट सरफेस चाहिए, जिसके ऊपर हम हमारा डिजिटल वेइंग मशीन या डिजिटल स्टेडियोमीटर रखने के बाद हम उस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी सामने देख रहे हैं, डिजिटल स्टेडियोमीटर रखा हुआ है जिस पर हम बच्चों की हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं। Calculated by taking a person's weight and dividing by their height squared. To measure the height correctly, a stereometer is required. If a stereometer is not there, it could be done against a wall as well with measuring tape pasted on it. It should be done on a hard flat surface. The participant should remove shoes, bulky clothes. यदि हमारे पास डिजिटल स्टेडियोमीटर नहीं है तो हम वॉल के अगेंस्ट में जो हमारा मीटर टेप है उससे हम मार्किंग करके या उसे दीवार पे पेस्ट करके उसके अगेंस्ट भी रीडिंग ले सकते हैं। और हाइट निकालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों की जो क्लोथिंग है, हैवी क्लोथिंग, जिससे कि उनकी हाइट पे फर्क पड़ सकता है, जैसे कि शूज हैं, उनकी जैकेट है, गर्ल्स के हेयर बैंड वगैरह है, इन्हें हमें अलग करके और हाइट निकालनी चाहिए। जो हाइट है वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कैलकुलेट होगी। Clothing, hair ornaments and unbraided hair that could interfere with the measurement. Participants should stand with feet flat together and back against the wall. Legs should be straight, arms at side and shoulders level. The participant should look straight ahead and the line of sight should be parallel to the floor. The height should be recorded in centimeters. नीरज आपको फ्रीज करना है ना, वो बीच में बहुत लंबा हो रहा है। जी सर। जब हम सब्जेक्ट का हाइट कैलकुलेट करेंगे तो हमें कुछ चीजें विशेष ध्यान रखनी है कि उनके जो फीट है वो पैरेलल टू द ग्राउंड होने चाहिए, आई साइड बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और जो उनका हेड है वो स्टेडी होना चाहिए, और नीचे जो सरफेस जिस पे हम स्टेडियोमीटर रख रहे हैं वो फ्लैट होनी चाहिए, ताकि हमारी रीडिंग पर किसी भी प्रकार का कोई अलग दिक्कत ना आए। The reading of the height should be typed in at the designated. जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब आप हाइट पे लेंगे। हिमांशु एक सेकेंड, नीरज आप ये क्रॉस कर लीजिए प्लीज, एंड माउस को ना ऊपर रखिए, नीचे मत रखना। आप ऊपर से ही चलाना, ऊपर ही क्लिक करना, नीचे मत क्लिक करना। स्क्रीन पे करोगे तो आगे जाएगा, एंड यू कीप पॉजिंग देम, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। जी सर। छोटे छोटे सेगमेंट में करना, ऊपर क्लिक करना, नीचे मत करना, वो कवर हो जाता है पूरा। ओके सर, ओके सर। ऑटोमेटिकली स्टार्ट, यस प्लीज। जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब हम टेक टेस्ट में जाने के बाद BMI पे क्लिक कर रहे थे तो हमारे सामने ये स्क्रीन खुली थी जिसमें हमें हाइट और वेट कैलकुलेट करके लिखना है। जैसा यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं कि 151 सेंटीमीटर हाइट आई है। अब इसे मिलीमीटर के फर्स्ट डेसिमल पॉइंट तक भी दे सकते हैं, यानी कि जैसे 151.56 एज इट इज, जैसा बच्चे का एक्चुअल हाइट है हमें वो डालना है जो आपको यहाँ स्क्रीन पर सामने दिख रहा है। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे कि वेट कैलकुलेट करने के बाद वेट के कॉलम में भी हमें वैसे ही डालना है। प्लीज मैम Place on the screen. To measure the weight accurately, a digital scale should be used. The scale should be placed on firm flooring rather than a carpeted floor. The participant should remove shoes and heavy clothing. The जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं नीरज, जहाँ पे वो वेट का है वहाँ पॉज करेंगे, छोटा छोटा, इट बी इजियर फॉर हिम टू जस्ट translate it and go, because otherwise there's too much to be this thing. जी सर, I'll split. Please. हाँ, जैसा आपने देखा कि वेट हमें मेजर करने के लिए हमें डिजिटल वेट मशीन चाहिए जो एक फ्लैट सरफेस पे रखी होनी चाहिए और बच्चे उसके बिल्कुल बीचों बीच में खड़े होंगे ताकि
जो एक्चुअल रीडिंग है वो हमें मिल सके, और जो हमारा वेट आएगा वो किलोग्राम और ग्राम में, यानी कि फर्स्ट डेसिमल पॉइंट के इसमें हम ले सकते हैं, फर्स्ट डेसिमल पॉइंट तक। प्लीज Participant should stand with both feet in the center of the scale. The weight should be recorded in kilogram and gram to the nearest decimal. The reading of the weight should... जैसा कि आपने स्क्रीन में पहले देखा था जो डिजिटल, मैम थोड़ा सा बैक हो सकता है नीरज, आप ये बहुत ज्यादा फास्ट कर रहे हो, वो जहाँ पे प्लकार्ड आ रहा है यू हैव टू स्टॉप देयर, ओनली देन ही कैन एक्सप्लेन, दिस इज टू मच ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। हाँ यस ओके मैम ओके। जैसे हमें बच्चों का जब वेट लेना है तो हमें उनको बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में खड़ा करना है, और उनकी हैवी क्लोथिंग्स और जो उनके शूज वगैरह है वो रिमूव करना है, उसके बाद ही हमें उनका एक्चुअल वेट निकाल सकते हैं। जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, डिजिटल वेइंग मशीन में जो वेट इस समय आपको दिख रहा है 44.8 यानी 44 किलोग्राम, और तो हम फर्स्ट डेसिमल पॉइंट तक ले सकते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखता है। मैम प्लीज पे The reading of the weight should be typed in at the... Hello? Sir, you are audible. मैम प्ले करिए आगे वीडियो। The designated place on the screen. Once both the readings are entered in the app, scan the ID card of the participant. एंटर कर देंगे सही जगह पर, जिसके बाद हम जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वहाँ पे एंटर करने के बाद हम बच्चों का जो क्यूआर कोड है, जो हमने आईडी कार्ड जनरेट किया है जिसमें जो क्यूआर कोड लगा है, उसे स्कैन करने के बाद हमें उनकी एक्यूरेट रीडिंग, उनका जो भी बच्चे का नाम है वो सब हमें स्क्रीन पे दिखने लगेगा, और हमें सिर्फ सेव बटन दबाना है। और ये स्मार्ट ऐप है, ये ऑटोमेटिकली बीएमआई का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, हमें वो करने की जरूरत नहीं है। ये स्मार्ट ऐप ऑटोमेटिकली इस डेटा को कन्वर्ट करके आपको बीएमआई दिखा देगा। Participant by tapping on the scan option. Was the age and gender of the participant is updated? Save the record by tapping on the save. जैसा कि आपने देखा स्क्रीन पे, हमने बच्चे का जैसे ही आईडी कार्ड डेटा स्कैन किया उसके बाद हमें इसको सेव बटन पे क्लिक करना है, तो बच्चे के नाम के अगेंस्ट ये डेटा हमारे सर्वर पे, हमारे फोन पे सेव हो जाएगा, और बाद में जैसे ही हमें इंटरनेट मिलेगा ये ऑटोमेटिकली सर्वर पे जाके सेव हो जाएगा। हम इसे ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं। Save option. This completes the process to calculate the body mass index or BMI. Escape दबाइए। Yes. Click on escape. Yes. Yeah, sir. Go to the next page. इस तरह से हमारा पहला जो टेस्ट है बैटरी ऑफ टेस्ट बीएमआई कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टेस्ट पे जाएंगे जो कि कोऑर्डिनेशन जांचने का एक टेस्ट है जिसे प्लेट टैपिंग टेस्ट नाम दिया गया है। एक्चुअली ये बच्चों के अपर बॉडी रिएक्शन टाइम और हैंड आई कोऑर्डिनेशन को मेजर करने का एक टेस्ट है। साथ ही हम इनके स्पीड और कोऑर्डिनेशन और लिम्ब मूवमेंट्स को भी इस टेस्ट के साथ मेजर कर सकते हैं। और इस टेस्ट को करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें यदि एडजस्टेबल हाइट वाला एक टेबल मिल जाए, ताकि इससे हमारे सब्जेक्ट की जो रीडिंग्स हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़े और हमें अच्छे से रीडिंग मिल जाए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ में आपको डायमेंशंस में डिस्क दी हुई है, 2 येलो कलर की डिस्क जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए और एक रेक्टेंगल जो 30 बाय 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये दो हमारे पास होने चाहिए। हम अब वीडियो में विस्तार से देखेंगे कि कैसे हम इसको टेस्ट को कंडक्ट करेंगे। Neeraj, you have to stop wherever there's a placard and थोड़ा सा ये करके slow break it down. So because this is the most important thing, लोगों को technicalities बताओ। Okay sir. To conduct the plate tapping test, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. जैसे कि हमने प्रीवियस बीएमआई में भी किया था, इसके लिए भी हमें खेलो इंडिया फिटनेस एसेसर ऐप को क्लिक करना है। उसके अंदर टेक टेस्ट ऑप्शन में जाने के बाद हमारे पास एक वेरियस टेस्ट ऑप्शंस खुलेंगे, जिसके अंतर्गत हमें कोऑर्डिनेशन पे क्लिक करना है, जहां पर हमें प्लेट टैपिंग टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, फिर उसे क्लिक करना है। देखिए
From various test options, select coordination and then tap on the plate tapping option. The app is now ready for the जैसे ही आप प्लेट टैपिंग टेस्ट पे क्लिक करते हैं, आपका ऐप रेडी हो जाता है स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए, और इस तरह की स्क्रीन आपके सामने खुलेगी जिसमें कि जो प्लेट टैपिंग टेस्ट है उसका डेटा हमें मेजर करके एंटर करना है। प्लीज स्टार्ट the plate tapping test. The plate tapping test. तो प्लेट टैपिंग टेस्ट करने के लिए जो एक्चुअल में बच्चों का जो हैंड है, जो जैसे आप सामने देख रहे हैं बच्चा खड़ा हुआ है टेबल के सामने, जिनका जो नॉन वर्किंग हैंड है वो रेक्टेंगल पर होगा, और जो वर्किंग हैंड है उससे उन्हें दोनों तरफ जो गोल सर्कल में येलो डिस्क हैं उन्हें टैप करना है, और दोनों तरफ टैप करने पर उसे एक कंप्लीट साइकिल माना जाएगा। और इस तरह से वो 25 साइकिल्स यानी कि 50 बार डिस्क को टच करता है तब हमें स्टॉप कर देना है टाइमर को। हम आगे देखेंगे उसके बारे में। अभी थोड़ा सा वीडियो प्ले करें। Measures upper body reaction time and hand-eye quickness and coordination. It also assesses हाँ, एक्चुअली ये जो प्लेट टैपिंग टेस्ट है बच्चों के अपर बॉडी रिएक्शन टाइम और हैंड आई कोऑर्डिनेशन को जांचने का एक तरीका है, जिसमें हमें दो येलो डिस्क और एक रेक्टेंगल ब्लू कलर रेक्टेंगल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका डायमेंशन आगे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। the speed and the coordination of limb movement. One table, 2 yellow discs of 20 cm diameter and one rectangular sheet of 30 by 20 cm size are needed to perform. पॉज मैम। हाँ, जैसे कि अब यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें आपको 2 येलो डिस्क और एक रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी। जो आपका येलो डिस्क हैं वो 20 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर डायमीटर की होनी चाहिए, और जो रेक्टेंगल है उसका साइज है 30 बाय 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे येलो कलर का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं क्लास का सेकंड थर्ड के लिए टेस्ट होना है, ताकि उन्हें इजीली मतलब जल्दी से उन्हें पता चले कि उन्हें कहाँ टैप करना है, इसलिए भी इस येलो डिस्क का इस्तेमाल किया गया। आप इसे अपने कलर पेपर की मदद से भी बना सकते हैं। This test. The table height should be adjusted so that the subject is standing comfortably in front of the discs. The 2 yellow discs are placed with their टेबल की हाइट एडजस्टेबल होगी, जिससे कि हमें सब्जेक्ट के हिसाब से यदि टेबल की हाइट एडजस्ट करनी पड़े तो हमें इजी हो, और उसके बाद जो है उन्हें कंफर्टेबली टैप करने के लिए मिले। और जैसा आप हाँ आगे देखेंगे कि कितने दूर हमें डिस्क को रखना है और रेक्टेंगल को कितने दूर पे रखना है। जस्ट प्ले एंड पॉज। center 60 cm. थोड़ा सा आगे, हाँ जी, थैंक यू। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दोनों डिस्क है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उनका आधा यानी कि 30 सेंटीमीटर पे आपका रेक्टेंगल का एपिक सेंटर आना चाहिए, जैसा आप अभी अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। Part on the table. The rectangle is placed equidistant from both the discs. The participant is encouraged to stand in a balanced posture. पार्टिसिपेंट्स को हमें इंस्ट्रक्शन देनी है स्टेसो करने के पहले कि वो बैलेंस पोस्चर में खड़े रहे। उसके बाद जो उनका नॉन प्रिफर्ड हैंड है, मतलब जिस हैंड का वो कम इस्तेमाल करते हैं, वो हैंड हमें रेक्टेंगल पे रखवाना है, और जिस हैंड का वो अधिक इस्तेमाल करते हैं उससे दोनों प्लेट्स पर टैप कराना है। जब 2 बार टैप होगा लेफ्ट और राइट साइड की प्लेट पे, उसे 1 कंप्लीट साइकिल माना जाएगा। इस तरह से 25 कंप्लीट साइकिल स्टूडेंट्स कितनी देर में करते हैं, हमें इसको कैलकुलेट करना है, जैसा हम आगे वीडियो में देखेंगे। Non-preferred hand is placed on the rectangle. The subject moves the preferred hand back and forth between the discs over the hand in the middle as quickly as possible. Once the participant starts, जैसे ही पार्टिसिपेंट तैयार हो जाए इस एक्टिविटी को करने के लिए, हमने उसे जो समझाया है, जो उसके बाद वो समझने के बाद वो तैयार होता है जैसे एक्टिविटी के लिए, तो हमें अपनी स्क्रीन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर दिखेगी, उसमें जाने के बाद स्टार्ट टाइमर पे क्लिक कर देना है, और जब बच्चे के 25 कंप्लीट साइकिल्स हो जाते हैं तब हमें वहां पे इस टाइमर को स्टॉप कर देना है। ये स्मार्ट ऐप ऑटोमेटिकली टाइमिंग को कैलकुलेट कर लेगा।
This test, the start timer option should be tapped on the screen. Okay. This action is repeated for 25 full cycles. The total time taken to complete 25 full cycles is recorded. As the participant जैसे ही बच्चे के 25 कंप्लीट साइकिल्स हो जाते हैं टैपिंग के, उसी समय हमें टाइमर को स्टॉप कर देना है। आपके सामने स्क्रीन पे देखिए अभी स्टॉप टाइमर का ऑप्शन आ गया। जैसे ही आपने स्टॉप किया वैसे ही टाइमर ने जो है रीडिंग कैलकुलेट कर ली कि इन्होंने बच्चे ने 20 सेकंड टू 790 मिली सेकेंड्स में इस टेस्ट को कंप्लीट किया है। इसके बाद हमें स्कैन पे ऑप्शन पे जाना है और बच्चे के आईडी कार्ड को स्कैन करने के बाद ये डेटा उसके नाम के अगेंस्ट में सेव कर देना। प्लीज। After these 25 full cycles of tapping, stop timer option should be tapped on the screen. The clock on the screen shows the time taken by the participant to complete 25 full cycles of lead tapping. To record the data, first scan the ID card of the student and then tap on the save. जैसे हमने पिछले ऐप में भी देखा, जब हमारा टेस्ट कंप्लीट होने के लिए जब हम उसमें डेटा एंट्री कर देते हैं, उसके बाद हमें बच्चों के आईडी कार्ड को स्कैन करने के बाद, स्कैन ऑप्शन पे जाने के बाद बच्चों के आईडी कार्ड पे जो हमारा क्यूआर कोड प्रिंटेड है, हमें सिर्फ उसके ऊपर स्कैन ऑप्शन को लेके जाना है। ऑटोमेटिकली वो क्यूआर कोड बच्चे का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एज सभी को आपके स्क्रीन पे दिखाएगा। आप जब श्योर हो जाएं कि ये उसी बच्चे का है, देन आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे और ये डेटा सेव हो जाएगा। इस तरह से टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। Save option. This completes the paid tapping test. अब हम अगले बैटरी ऑफ टेस्ट जो कि क्लास 1st to 3rd का यानी एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 इयर्स का है, जो तीसरा टेस्ट है वो बैलेंस को बच्चे के बैलेंस को मेजर करने के लिए है। उसका नाम है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। एक्चुअली ये एबिलिटी जो बच्चों के सिंगल लेग पर खड़े होने की जो एबिलिटी उसे मेजर करने का ये एक टेस्ट है। इस आल्सो मेजर्स द लेग एंड पेल्विक एंड ट्रंक मसल्स विद स्टैटिक बैलेंस ऑफ द स्टूडेंट। इसके लिए हमें एक नॉन स्लिपरी सरफेस की जरूरत होती है, साथ में एक बीम या हम एक ब्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमें इस टेस्ट को कंडक्ट करना है। To conduct the Flamingo balance test, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option from various test options. सेम प्रोसीजर है जैसे हमने पिछले इसमें किया था कि जैसे ही हमें जब हम इस टेस्ट को कंडक्ट करना है तो खेलो इंडिया फिटनेस असेसर ऐप को ओपन करेंगे। इसके अंदर टेक टेस्ट ऑप्शन में जाने के बाद हमें वेरियस टेस्ट ऑप्शंस आएंगे। चूंकि ये टेस्ट बैलेंस का है इसलिए हमें बैलेंस पे क्लिक करना है, जिसके अंदर हमें फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट ऑप्शन मिलेगा। Select balance and then tap on the Flamingo balance test option. जैसे ही आप फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट पे क्लिक करेंगे, जैसा आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है ऐसे ही आपके मोबाइल स्क्रीन पे भी खुलेगा, जिसके बाद हम रेडी हो जाएंगे इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। The app is now ready for the Flamingo balance test. The Flamingo balance test measures the ability to balance successfully. फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट जैसा आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक्चुअली ये हमारे सब्जेक्ट या हमारे बच्चों के एबिलिटी टू बैलेंस ऑन सिंगल लेग, एक पैर पर खड़े होने की क्षमता को नापने का एक टेस्ट है। साथ ही साथ ये बच्चों के लेग, पेल्विक, ट्रंक मसल्स और स्टैटिक बैलेंस को भी मेजर करता है। Successfully on a single leg. Test assesses the strength of the leg, pelvic and trunk muscles as well as static balance. While balancing on the preferred leg, the free leg is ये टेस्ट कंडक्ट करने के लिए हमें छात्रों का जो प्रेफर्ड लेग है जिस पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उस लेग पर वन लेग पर उन्हें खड़ा करना है और दूसरा पैर जो है उनके बटक के साथ जो नॉन वर्किंग हैंड है उसके साथ कनेक्ट होगा, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे अभी आगे वीडियो में देखेंगे।
fixed at the knee and the foot of this leg held close to the buttocks, standing just like a flamingo. The test should be done on non-slippery. जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उनकी स्टेशनरी पोजीशन होगी। जो प्रिफर्ड लेग है वो ब्रिक के ऊपर होना चाहिए, जिसपे हमें उनका बैलेंस टेस्ट करना है। और जो दूसरा लेग है, जो फ्री लेग है, वो बटक के साथ लगा होना चाहिए, एकदम 90 डिग्री ग्राउंड के साथ। साथ ही जो हाथ है वो स्टेशनरी पोजीशन में होने चाहिए। और ये जो टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये नॉन स्लिपिंग सरफेस पे होना चाहिए। इसके लिए हम बीम या एक ब्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। Be done on non-slippery even surface by standing on a beam or a brick. The athlete keeps balance by holding the instructor's hand if required. The timer is started as the instructor lets go. To start the timer on the app, प्ले मैम। start timer should be tapped. The timer is stopped each time that हेलो, Yeah, sir. Continue. Should I play it continuously? Hello? That's fine. Yeah, Himanshu sir, please. हेलो, Yes, sir. Sir, we can hear you. हेलो। ये मैं बता दूं। हिमांशु जी आपको आवाज आ रही है? हेलो, इसमें जो है अब छोड़िए उनको। हेलो। दैट्स ओके, नीरज, लीव इट। जी तो सर। इसमें जो है, जो टाइमर है वो ये जब भी बैलेंस का मतलब होता है, ये 60 सेकंड खड़े होने के लिए। जब भी बच्चे का बैलेंस खो जाता है, उस समय आपको टाइमर को पॉज करना है। हेलो, हेलो। Yeah. So next, Neeraj. athlete loses balance either by falling off the beam or letting go the foot behind being held. तो इसमें जैसे ये बच्चे ने 15 सेकंड के बाद इसका बैलेंस खो गया बच्चे का, तो उसी Hello? समय इसका जो काउंटर है, हिमांशु यू कैन स्टॉप। तो इसमें जैसे ये 15 सेकंड के बाद बैलेंस बच्चे का खो गया है, तो आप इसको टाइमर को पॉज करना है। अब जब वो बच्चा रेडी हो जाता है, उसको स्टार्ट करना है। नीरज प्लीज। To do that, pause timer should be tapped on the app each time the participant loses balance. Start the timer again when the participant is in the position. स्टॉप। इसमें जब पार्टिसिपेंट फिर रेडी हो जाता है, तो आपको टाइमर को फिर से स्टार्ट करना है। जब भी पार्टिसिपेंट पोजीशन में आ गया, जैसे आप देख सकते हैं बच्चा जो है पोजीशन में आ गया, तब आप टाइमर को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो पॉज टाइमर को क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट। If there are more than 15 falls in first 30 seconds, तो इस केस में क्या है कि ये जो बच्चा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, और थोड़ा सा आगे। the test is terminated. तो इस केस में क्या है कि जो बच्चा है, अगर बच्चा ये 60 सेकंड खड़े होने के लिए 30 सेकंड भी खड़ा नहीं हो पा रहा है बच्चा, तो हर बार खड़ा होता है तो वो गिर जाता है। तो 30 सेकंड का अगर बच्चा 15 बार गिर जाता है, तो ये टेस्ट को टर्मिनेट करते हैं। इसको वो बच्चा जो है, इट शोज दैट द चाइल्ड डज नॉट हैव द राइट बैलेंस। ओके, नेक्स्ट। The number of falls or loss of balance in 60 seconds of balancing is counted and थोड़ा सा recorded. The timer automatically stops at the 60 seconds mark. तो ये जो है ये बच्चे का जो है 60 सेकंड में बच्चा कितने बार गिर रहा है, हम वो इंडिकेट करते हैं। तो बच्चा अगर 4 बार गिर रहा है 60 सेकंड खड़े होने के लिए, तो तभी वो टाइमर अपने आप ही बंद हो जाता है। नेक्स्ट। The ID card of the participant is scanned by. तो इसमें क्या है कि जब भी आपका टेस्ट खत्म हो जाता है, तो आपको सेम प्रोसेस है। बच्चे का टेस्ट खत्म हुआ तो आप स्कैन बटन में क्लिक करके बच्चे को उसका स्कैन करेंगे, तो उसका आईडी कार्ड स्कैन हो जाएगा।
Next. Tapping on the scan option. Once the participant details are updated, the data is saved by tapping on the save option. तो बच्चे का जो फिर उसके बाद आपको सेव का बटन जब दबाएंगे तो बच्चे का रिकॉर्ड सेव हो जाएगा. Completes the Flamingo balance test. राइट. तो इसमें जो है हमने ये देखा कि फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट है. ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि लॉस ऑफ बैलेंस है कि 60 सेकंड बच्चे को खड़े होने के लिए वो कितने बार गिर रहा है. बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट और स्टॉक टेस्ट में डिफरेंस क्या है. तो फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट जो है 60 सेकंड खड़े होने के लिए कितने बार बच्चा गिर रहा है वो है, जबकि स्टॉक टेस्ट एक सिमिलर टेस्ट है, बट स्टॉक टेस्ट में देखते हैं कि बच्चे कितने देर तक खड़ा हो पा रहा है. मान लीजिए कि वो बच्चा 15 सेकंड खड़े होकर वो गिर गया है, तो स्टॉक टेस्ट में उसका रिकॉर्ड स्कोर होगा 15. लेकिन फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट में 15 सेकंड के बाद वो नेक्स्ट टाइम 20 सेकंड के लिए खड़ा हुआ, फिर 5 सेकंड के लिए खड़ा हुआ, 60 सेकंड खड़े होने के लिए, तो फ्लैमिंगो बैलेंस में वो काउंट किया जाता है. Yeah, next. Yeah, so today we have covered for class 1, 2 and 3 the battery of test, जिसमें हम 3 टेस्ट की बात कर रहे हैं. You can unshare the window. तो वो आज का जो है, so here we are actually seeing ये हमने जो देखा है, आज हमने तीन चीज के बारे में देखा. पहला वाला हमने देखा है कि स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन कैसे करना है. दूसरा हमने देखा है कि एसेसर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है. फिर हमने देखा है कि जो स्कूल में अगर 5 पीई टीचर्स है या 5 एसेसर्स है, जो पीआरटीज भी हो सकते हैं या कोचेस भी हो सकते हैं, तो उनको कैसे जोड़ना है, बच्चों का डेटा को कैसे अपलोड करना है. डेटा अपलोड करते ही ऐप में अपने आप आ जाएगा, पी टीचर के ऐप में वो डेटा आ जाएगा. फिर हमने आज 3 टेस्ट को देखा, क्लास 1, 2 और 3 के लिए देखा. 3 टेस्ट है, EMI, फ्लैमिंगो बैलेंस एंड प्लेट टैपिंग. ये 3 टेस्ट हमने देखा है. तो कल जो है, कल हम देखेंगे क्लास 2 से 4 से लेकर 12 का कैसे टेस्ट करना है, और हम कल देखेंगे कि रिपोर्ट कार्ड्स को कैसे डाउनलोड करना है और पेरेंट ऐप में कैसे दिखाएगा. ये 3 सेक्शंस हम कल देखने वाले हैं. So Gangwar ji, so what we can do is that we can probably do the question and answer. आज काफी क्वेश्चंस को मैंने डायरेक्टली आंसर किया हूँ Q&A के थ्रू. बाकी कुछ क्वेश्चंस का अगर इन शॉर्टेज ऑफ टाइम अगर है तो हम कल भी कर सकते हैं. Yeah, thank you so much for making all the queries and doubts clear regarding registration and assessment process of Khelo India. Yes, sir. सर आई थिंक क्वेश्चन के सारे आंसर आप लोग क्लियर करते ही गए थे. सुजीत सर, आप, नीरज मैडम एंड हिमांशु सर, एंड वीडियो में सारा कुछ इट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड स्टेप बाय स्टेप. So and we have to start another session for next batch as well. Right. So सारे पार्टिसिपेंट्स को है कि कल मैंने काफी क्वेश्चंस को Q&A के थ्रू डायरेक्टली आंसर कर लिया था. कल जो है, कल जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सारे को प्रॉपर्ली फिर से आंसर करेंगे. सो लेट अस डू इट टुमारो. हाँ, so we'll get all the questions from here and we'll keep it. Okay. So thank you so much for wonderful lesson, and it was well coordinated with all of you. And as you can see in the chat box and question answer also, like few doubts are there, so we're going to clear. And but you made a very understandable. So thank you so much, Sujit and Neeraj madam and Himanshu sir for being with us. And as we know that you are going to spare whole day with us, like all 3 batches, so it's going to be a tiring for you all. And so we ready for that, and our information, our next batch is ready. We have started. Yes, absolutely. So we'll do it tomorrow. Yeah. Okay, so thank you so much, and again after a few minutes we will see you in the next batch. Yes, see you in 2 minutes. 2 minutes. Maggie का time है 2 minute. Yes. Thank you. See you then. Bye. Okay, bye. And thank you participants for being with us, and tomorrow see you again the same batch with the next topic. Thank you so much. Yeah, 4 to 12. Thank you.